Sorry. So let's start. So now starting off with May, June 2025, paper 22. Okay. Now, if you would, let's go towards the very first question. Now, the very first question that we have is from reproduction in plants. ठीक है? तो basically हमारे पास ये सवाल किसके बारे में? ये seed germination के बारे में, right? Now, अब सबसे पहला हमारे पास ये सवाल कह रहा है कि भाई a pea seed is planted in a pot containing soil provided with the ideal conditions for germination. The pot is left in the dark room for about 10 days. ठीक है? Figure 1.1 shows the appearance of the germinating seeds on different days. So we have a seed. Now, at day 4, something comes out. On day 10, that particular thing that came out initially elongates, and then we have this curved structure. अब एक चीज देखो मेरे बच्चों, before we even start off the question, हमें पता है कि भाई fourth day के ऊपर right here, what has come out? The radical has come out. Now again, what's a radical? It's going to give rise to the new roots. ठीक है? Similarly, यहाँ मेरे पास, so again, this y right here is going to be the radical, and this x right here is going to be the plumule. अब हमारे पास क्या होता है? अब हमारे पास क्या होता है? If you were to look at the first, now this is the information that we have written down before we even started off with the question. ठीक है? अब सबसे पहला सवाल ये कह रहा है कि भाई describe the conditions required for the seeds to germinate for about 3 marks. अब हमें क्या पता है कि भाई हमारे पास सीड को जर्मिनेट करने के लिए 3 कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, राइट? अब वो कौन कौन सी कंडीशन है? सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है? वी रिक्वायर वाटर, राइट? वाटर हमारे पास क्या करता है? एज वी टोल्ड यू अर्लियर, it activates the enzymes. It activates enzymes. So we don't have to explain it. ठीक है, उसने explain करने को नहीं बोला, but just for the sake of understanding, let's just, so that हमारा ये भी chapter भी revise हो जाए. Let's, see why do we require water? Now we require water because it activates the enzymes. The second thing that we require is the oxygen gas. ताकि, so that the cells of the seed, right, or embryo अगर हम लोग specifically देखें, can do what? Can carry out aerobic respiration. तो हम लोगों ने कह दिया कि भाई can respire aerobically. ठीक है? और तीसरी चीज हमारे पास क्या आ जाती है? warmth. warmth क्या करता है? increases या maintains the optimum temperature for what? For the enzymes. All right. So again, हमें यहाँ क्या करना था? We just had to talk about कि भाई कौन कौन सी चीजें required हैं for 3 marks. We require water, we require oxygen, we require warmth. Right? अच्छा, अब दूसरा वाला सवाल ही कह रहा है, figure 1.1 shows the seed changes between day 1 and day 4. Right? Describe these changes and explain how they happen. Now, for that, what we're going to do is we're going to go to our lecture and we're going to see कि भाई जब हमारे पास seed germination होती है ना, the very first thing that comes out is this radical. Sorry, right here, ये day 4 है radical के ऊपर. अब day 0 या day 1 से लेके भाई day 4 तक क्या हुआ? ये radical कैसे बना? Because this embryo grew. Why did this embryo grow? Is because हमारे पास एंडोस्पर्म या फिर कॉटिलिडन जो होता है, उसके अंदर जितना भी स्टोर्ड फूड होता है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? दैट्स गोइंग टू बी ब्रोकन डाउन सो दैट द एम्ब्रियो कुड यूज इट अप. एम्ब्रियो जब हमारे पास ग्लूकोज को या कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करेगा, फैटी एसिड्स को यूज करेगा, अमीनो एसिड्स को यूज करेगा, कौन कौन से पर्पसेस के लिए? इट्स गोइंग टू यूज द कार्बोहाइड्रेट्स और द ग्लूकोज और द मोनोसैकेराइड्स फॉर रेस्पिरेशन एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेल वॉल्स. It's going to use the fatty acid and glycerol for respiration and to make the new cell membranes. It's going to use amino acids for growth. This embryo is going to grow. एंडोस्पर्म छोटा होता जाएगा, एम्ब्रियो बड़ा होता जाएगा. ठीक है? सो नाउ अब वो कह रहा है भाई डिस्क्राइब दीज चेंजेस एंड हाउ डू दे हैपन. तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या बात बताई कि as the seed absorbs water,
digestive enzymes. Let's be specific about the enzymes that are being, let's say are being active. तो हमने कह दिया digestive enzymes such as amylase. Let's give them two examples as well. Amylase, protease, या फिर हम लोग कहते हैं भाई lipase or lipases become active that digest specifically क्या amylase क्या रिस्पायर करेगा स्टार्च प्रोटीएज क्या रिस्पायर करेगा प्रोटीन्स और लाइपेज क्या रिस्पायर करेगा लिपिड्स हम लोगों ने बता दिया रिस्पेक्टिवली अच्छा अब देखो अब मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता था amylase will digest starch protease will digest proteins lipase will digest lipids I don't have the time for that right तो मैंने कह दिया भाई ये तीन एंजाइम्स हैं और ये किस किसको डाइजेस्ट करेंगे amylase is going to digest starch protease is going to digest proteins and lipase is going to digest lipids respectively ठीक है अच्छा उसके अलावा क्या होगा हम लोग ऐसा क्यों हो रहा है सो दैट द एम्ब्रियो हमने दो फंक्शंस बता दिए मे रिस्पायर एंड मे ग्रो ठीक है अच्छा उसके अलावा हमारे पास क्या हो रहा है 1 से लेके 4 के अंदर इसकी ये जो आउटर कवरिंग थी मुझे ये अब कैसी नजर आ रही है स्प्लिट हुई हुई नजर आ रही है व्हाट डू वी कॉल दिस आउटर कवरिंग ऑफ द सीड वी कॉल इट द टेस्टा तो हम आखिरी बात क्या बता देंगे कि एज द water was absorbed, the seed uh, got swollen up or the seed swelled, and the outermost covering, the testa, broke, allowing what to come out? Allowing the radicle to form. ठीक है? Make sense? All right. Okay. Now, moving on with the next question. Moving on with the next question. अब अगर हम लोग अगले सवाल पे जाएं तो हम लोग क्या देख रहे हैं वो कह रहा है figure 1.1 shows that after 10 days the structures labeled X and Y have developed from the parts of the seeds. Name the part of the seed that X has developed from. भाई चाहे वो X हो चाहे वो Y हो हमारे पास ultimately radicle और plumule दोनों किस जगह से आ रहे होते हैं they're coming out from the embryo. तो हमने बता दिया कि भाई this part that we have right here is the embryo. ठीक है The seed is germinating in darkness. Explain what causes X and Y to grow in opposite direction. ठीक है ये हमारे पास क्या आ जाएगा This is basically tropism. अब we know कि भाई हमारे पास जो radical होता है which is Y here ठीक है वो हमारे पास क्या हो जाएगा वो हमारे पास going to follow gravitropism. Yes हारून बेटे we can exceed the lines ठीक है प्लेम्यूल जो होता है वो हमारे पास क्या शो कर रहा होता है वो हमारे पास फोटोट्रोपिज्म शो कर रहा होता है ठीक है अब हम क्या बताएंगे कि भाई व्हाई आर दे ग्रोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस हमने कह दिया अब देखो यहाँ तो उसने पहले बताया हुआ है कि भाई यहाँ डार्कनेस नहीं है सॉरी लाइट नहीं है डार्कनेस है सो वी डोंट हैव टू मेंशन फोटोट्रोपिज्म बट व्हाट आई डू नो इज कि इफ द प्लेम्यूल सो इफ यू गो बैक हियर हमने क्या बात करी थी the plumule, while it shows positive phototropism, it also shows negative tropism and hence it grows away from the ground. While the radical, it shows a positive gravitotropism, hence it grows towards the ground. तो अगर हम लोग phototropism को mention ही नहीं करें, we can still show कि भाई they are still going to go in opposite direction. अगर हम करते कोई मसला नहीं है, अगर हम लोग नहीं करें, we can still show that. हम क्या बता देंगे? हम ये बता देंगे कि x, just let me go and see which one was the x plumule. Okay, x
हमने कॉमा बता दिया। द प्लीम्यूल shows negative gravitotropism and grows away from the soil while Y, the radical, shows positive gravitotropism and moves towards the soil. All right. Acha ji. So this concludes our question number one. So this concludes our question number one, right? It's for 2 marks. We don't have to mention oxens. No. Acha ji. So now coming back to question number, or now moving on with the paper, and let's go back to question number two. Now, अब सवाल नंबर 2 ये कह रहा है, scientists have been thinking about how to feed the human population of the planet in a healthy and sustainable way. They have produced a model called Planetary Health Plate. This is shown in figure 2.1. So what did this show? It this particular is a whatever this planetary health plate is, it basically shows a pie chart. ठीक है? अच्छा, वो उसके अंदर वो कह रहे भाई मैक्सिमम परसेंटेज हमारे पास जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए। ठीक है? उसके अलावा हमारे पास होल ग्रेन्स होने चाहिए, स्टार्च और वेजिटेबल्स कम होने चाहिए। We have dairy foods, we have animal source proteins, should have plant source proteins, we should have plant oils, and we should have added sugars. ठीक है? अच्छा, अब वो कह रहा है the vegetables and fruits provide some of the protein, carbohydrates, and lipids needed for the balanced diet. Name three other components of the balanced diets that can be obtained from vegetable and fruits. ठीक है? So, besides protein, carbohydrates, and lipids, what can we extra or can what can or what are other nutrients that we can get from the fruits? सबसे पहले देखो बेटे, जब भी plants के बारे में बात करें ना, we're talking about vegetables and fruits. One thing that we have to remember is all plant cells have cell walls. And since they have cell walls, the cell wall is made up of cellulose. We cannot digest cellulose, and cellulose in our diet is going to provide us with fiber, right? उसके अलावा, I know that fruits, for example, let's say the uh, oranges, right? Lemon, but then I realized lemon is a vegetable, right? It gives you what? It gives you vitamins. And besides, let's say vitamins and fiber, one other, let's say, substance or that is required in a balanced diet that we get from the fruits and the vegetables, these are the mineral ions. For example, हम लोगों ने बात करी थी leafy vegetables are a very good source, let's say, of, for example, spinach for iron ions, right? We get sodium, we get potassium. ठीक है जी? ओके। नहीं, कोई डिफरेंस नहीं होगा अगर मैं ई पहले लिखूं या ई बाद में लिखूं। ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड। अगर अच्छा, एक और चीज़, अगर हम लोग यहाँ मिनरल आयंस लिखने के बजाय कोई स्पेसिफिक मिनरल आयन भी लिख दें तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है? सिमिलरली, हाँ देखो, अगेन यहाँ चीज़ें थ्री डिफरेंट कंपोनेंट्स है ना। सो आई कैन नॉट राइट विटामिन सी एंड विटामिन डी। वी कैन ऑल्सो मेंशन वाटर, यस, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है? हाँ मिलता है, लेकिन उसने तीन चीज़ पूछी, मैंने तीन चीज़ बता दी। ठीक है? lemon is a fruit. I always thought lemon was a vegetable. खैर, ठीक है? So we had to talk about the three components of balanced diets that were not protein, carbohydrates, and lipids. All right? Okay, so moving on. Roughage fiber beta. अच्छा, state two reasons why plant oil and other lipids are important in the human diet. कि भाई हमारे पास जो lipids हैं, which we're going to get from oils, why are they important, right?
सबसे पहली बात हमें क्या पता होना चाहिए? लिपिड्स आर अ गुड लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोर, राइट? एट द वेरी सेम टाइम ये और क्या करते हैं? द लिपिड्स, दे प्रोड्यूस सीबम, राइट? दे give or they allow, let's say, my cell membranes to be produced. उसके अलावा एक चीज जो अगेन यहाँ लिख देता है कि भाई इट अलाउस द प्रोडक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स, स्किन ऑयल, हम लोगों ने यहाँ सीबम लिख दिया। लेकिन एक चीज़ जो मेरे बच्चे यूजुअली भूल जाते हैं वो क्या है? इट अलाउस द बिल्ड अप ऑफ कौन सा वाला टिश्यू? इट अलाउस द बिल्ड अप ऑफ adipose tissue. And the adipose tissue that we have, it does what? It provides insulation. It prevents excess heat from escaping your body. All right? अच्छा जी. Now, coming to the next question. अब वो कह रहा है table 2.1 shows the recommended daily average intake of sources of proteins from animals and plants in the planetary diet plate model. ठीक है? अब वो कह रहा है कि भाई हमारे पास रेड मीट से कितना प्रोटीन कमिंग फ्रॉम द एनिमल्स, एंड the average intake is 14 grams per day. From poultry, we need 29, let's say, grams per day. From eggs, we need about 13 grams of proteins per day. Again, from fish, 28 grams per day. Legumes 75 and nuts 70. ठीक है? अब वो कह रहे हैं use table 2.1 to calculate the percentage that plant protein sources contribute to the recommended average daily protein intake for humans. ठीक है? अब हमारे पास टोटल, ओके, या टोटल हमारे पास प्रोटीन इनटेक कितनी है? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू ऐड देम अप. So it's 14 plus 29 plus 13 plus 28 plus 75 plus 50. This is coming out to be 209. अब इस 209 total of grams of protein per day में से हमारे पास जो plants हैं, ठीक है, वो उसकी परसेंटेज कितनी है? सो अगेन 75 प्लस 50 इज व्हाट? 75 प्लस 50 इज 125. तो हम लोग क्या करेंगे? इट्स गोइंग टू बी 125 डिवाइडेड बाय 209 मल्टीप्लाइड बाय 100. कि अब देखो, अगेन सवाल को समझो. वो कह रहा है calculate the percentage that plant protein sources contribute to the recommended average daily protein intake for humans. The total of all of this is the total amount of proteins that a human should be taking per day, right? अब इस टोटल में से हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ द सोर्सेज तो एनिमल सोर्सेज हैं. प्लांट सोर्सेज कितनी, और प्लांट सोर्सेज इस टोटल का परसेंटेज कितना बना रही हैं? सो व्हाट विल डू इज विल जस्ट ऐड इट ऑल अप, राइट? विल ऐड इट ऑल अप. हमारे पास कितना आ रही है? 209. प्लांट सोर्सेस हमारे पास कितना दे रही है? 75 प्लस 50 इज 125, right? Multiplied by 100. So it's coming out to be 0.59.8. Either we can write 59.8, इसको हम लोग राउंड ऑफ करके 60 भी कर सकते हैं. The answer that we're getting is, if you multiply this by 100, it's coming out to be 59.80. So 59.8. ठीक है? Now, very good, Aisha बेटा. ठीक है जी. Now, moving on. The global average daily human intake of red meat is approximately 300% of the recommended amount. Calculate how much red meat on average human eats in a year. 365 days, give your answer in kilograms. ठीक है? अच्छा जी. So daily हमारे पास per day कितना है? 300 times of the recommended amount. Recommended amount कितनी थी? 14. So 14
का 300% हमारे पास कितना हो जाएगा? सो इट्स कमिंग आउट टू बी 14 grams है ना? So 14 multiplied by 14 and 14 is going to be 100, right? So 14 का 300% कितना होगा? 300 टाइम्स ज़्यादा है ना, वी कैन राइट 60 एज वेल जी, राइट? मैथ का पेपर आ गया अनफॉर्चुनेटली। 14 का 300 टाइम्स कितना होगा? 42। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि ईमान उसने सवाल के अंदर ये पूछा हुआ था कि बेटे प्लांट प्रोटीन बताओ। ठीक है, अच्छा। सो 14 का 300 टाइम्स इज 42, राइट? अच्छा जी, कमिंग बैक हियर। अब 42 ग्राम्स हम लोग पर डे ले रहे हैं। तो इफ वी आर टेकिंग 42 grams of red meat in a single day, तो 365 days में हम लोग कितना लेंगे? सो इट्स गोइंग टू, वी सिंपली गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 365। कितना आ रहा है? 15330 ग्राम्स। अब ग्राम्स तो किलोमीटर्स में, ओ किलोग्राम्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? डिवाइडेड बाय 1000, राइट? एक दो, तो कितना आ जाएगा? 15.3 ग्राम्स, या थ्री थ्री कर लो, या थ्री, सॉरी, किलोग्राम्स। मेक सेंस? किसी को इस वाले सवाल के अंदर कोई मसला? डस एनीवन हैव? अच्छा तनिषा, 14 का 100% कितना होगा? 14, राइट? सो if something has increased, let's say 100%, अगर फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास हम 14 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे चंदा? उसका डबल हो जाएगा, राइट? तो वी सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके, लाइबा उसने बताया हुआ है कि देखो हमारी जो डेली इनटेक होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 14 ग्राम्स पर डे। बट ह्यूमंस आर कंज्यूमिंग अप्रॉक्सीमेटली कितने टाइम ज़्यादा? 300 टाइम ज़्यादा। तो अगर एक इंसान 300 गुना ज़्यादा डेली मीट का रेकमेंडेड इनटेक एक दिन में ले रहा है, तो बताओ वो साल में कितना ज़्यादा ले रहा होगा? दिस इज व्हाट द क्वेश्चन वाज। डू वी गेट दिस, लाइबा? ऑल राइट, ओके ओके, गुड इनफ। नाउ, सो मूविंग ऑन, हम वर्क ऑन समथिंग। नो आइडिया, हमसे नो आइडिया। ठीक है, 15.3, वेरी गुड। All right. Ishal, do you want me to explain this again, bete? So, when are we talking about this particular question, Chanda? So, Farwa, can you please specify the question? कि कौन सा वाला सवाल इस पर वो करना है, समझाना है? अच्छा, सेकंड पार्ट मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ, गिव मी अ मिनट। अच्छा जी, अच्छा अब देखो, अब लेट्स गो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पार्ट, कोई मसला नहीं है, ठीक है, कोई मसला नहीं, लेट्स गो फॉर द वेरी फर्स्ट पार्ट नाउ। अच्छा, तो पहला ये वाला पार्ट समझो, जो सबसे पहला वाला पार्ट है। भाई उसने कहा है कि हमारे पास ह्यूमंस रिक्वायर प्रोटीन्स, राइट? What's the total grams of proteins that the humans require? It's going to be the sum of these two. ये अलग अलग सोर्सेज हैं जहाँ से मुझे ये अलग अलग फूड्स मिलते हैं। इन हर फूड के अंदर इतना प्रोटीन होता है जो मुझे हर फूड से चाहिए। So the total amount of food proteins that I would be taking would be the sum of all of them. तो हमारे पास ये कितना आ रहा है? 14 प्लस 19 प्लस 13 प्लस 20 इज गोइंग टू बी 209। अब पहले सवाल के अंदर ये हमसे पूछ रहा है, अब पहले सवाल के अंदर ये पूछ रहा है, वी कैन राइट आयरन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, बेटे, ठीक है। अब पहले सवाल के अंदर ये पूछ रहा है कि भाई जितना भी हम लोग प्रोटीन खा रहे हैं ना, ये जितना भी हमारे पास रिकमेंडेड एवरेज प्रोटीन इनटेक है, ये होना, द अमाउंट, द ग्राम्स ऑफ प्रोटीन दैट वी शुड टेक पर डे, उसमें से प्लांट प्रोटीन सोर्सेज कितना कंट्रीब्यूट कर रही हैं? तो हमने कहा भाई, मोस्टली द प्रोटीन इज कमिंग फ्रॉम द एनिमल्स। Out of 209 grams,
प्लांट सोर्सेस से कितना ग्राम्स आ रहा है? 125 ग्राम्स। व्हाट्स द परसेंटेज ऑफ द प्लांट प्रोटीन कंपेयर टू द टोटल प्रोटीन? हम लोगों ने परसेंटेज निकाल ली, 125 डिवाइड बाय द टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटीन दैट वी हैव इनटू 100. So it's going to be 59.8 or it's going to be 60. Round off करके 60 लिख दो. ठीक है? Do we understand this? अब सवाल नंबर 2 पर आओ. अब वो कह रहा है कि भाई ग्लोबल एवरेज डेली ह्यूमन इनटेक of red meat is 3 times more than the recommended amount. सही. So let's stop here for a minute. वो ये बताना चाह रहा है कि जो रेड मीट ह्यूमंस खाते हैं वो 300 गुना ज्यादा खा रहे हैं देन द recommended amount. Do we know the recommended amount of red meat per proteins from the red meat per day? Yes, we do. How much of the proteins of the red meat that is coming from the red meat that we should take? We should be taking 14 grams per day. But we are taking 300 times more. तो हमें इंक्रीज करना होगा तो हम जितने परसेंटेज इंक्रीज करोगे उतने टाइम्स बढ़ा दोगे उसको. 14 का 100% कितना होता है? 14 होता है, राइट? बात समझ में आ रही है? तो 300% कितना होगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे. डू वी ऑल गेट दिस? यहां तक बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों? तो अब हम लोग जो रेकमेंडेड अमाउंट ऑफ रेड मीट है उससे 300 गुना ज्यादा खा रहे हैं. तो वी वर सपोज टू कंज्यूम 14 grams per day, but we are consuming 300% more. ठीक है? Do we all get this? Good enough. अब अगर हम लोग 42 ग्राम्स एक दिन में खा रहे हैं, उसने पूछा कि अच्छा बताओ एक साल में कितना खाएंगे, 365 डेज में कितना खाएंगे. It's basically cross multiplication. If you're consuming 42 grams per day, तो हम लोग कितना ग्राम्स 365 डेज में कंज्यूम करेंगे, राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 365 इंटू 42. तो हमारे पास कितना ग्राम आया? कितना ग्राम आया हमारे पास? हमारे पास आ गया 15330. ये ग्राम्स है. हाउ डू यू कन्वर्ट ग्राम्स इनटू व्हाट? इनटू किलोग्राम्स. यू डिवाइड दिस बाय 1000, राइट? किलो का मतलब 1000 होता है, राइट? सो इसको 1000 से डिवाइड करोगे, यूज अ कैलकुलेटर फॉर इट. तो आंसर क्या आ रहा है? 15.33. आइदर यू राइट इट 15.33 और आइदर यू सिंपली राइट 15.3. Does anyone still have any problems with this question? All right. Okay. Kumail, पार्टी के अंदर क्या मसला है बेटे? I'll show you at the end बेटे. If you are unable to follow up, write down what you have missed. We'll do it at the end of the class. ठीक है? Skip one. उसने स्पेसिफाई नहीं करा हुआ. ठीक है? हम कोई सिग्निफिकेंट फिगर स्पेसिफाई नहीं करा हुआ. ठीक है? नो, तुम मल्टीप्लाई वो कर रहे हो बेटे, 4 टाइम्स कर रहे हो, 400 टाइम्स कर रहे हो. ऑल राइट, मूविंग ऑन. This second part, Komal, are you talking about this second part? Okay, we'll discuss it at the end better. If you've missed out on something, we'll discuss it at the end. Don't worry. ठीक है? अच्छा, अब अगला सवाल ये कह रहा है कि भाई it is more efficient for humans to eat the plants. So part C says it's more efficient for humans to eat plants. Explain why. देखो, प्लांट्स के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं या जब भी हम लोग whenever we talk about ecology, हम लोग क्या देखते हैं कि all throughout the food cycles, no, not this one. What happens is we propagate only 10% of the energy. We only propagate 10% of the energy. कहने का मकसद क्या हुआ? कि देखो,
प्लांट्स हमारे पास जो हैं, they're producers, right? Whatever the energy that they have, they are going to give 10% of that energy to the primary consumers. For example, let's say भाई bucks के बजाय हम लोग यहाँ ना goats कर लेते हैं, ठीक है? अब whatever the energy that this wheat plant had, और उसने जो goats को दी, if I am going to consume the goats, मेरे पास कितनी एनर्जी आएगी? 10% ऑफ दैट. इसको एक और तरीके से समझो, इसको एक और तरीके से समझो. इसको यहाँ देखो. So we have space right here. So let's say there are some carrot plants that have, let's say, 10,000 kilojoules per mole of energy. If, let's say, some goats or some rabbits are eating, or the primary consumers are feeding on them, जो भी हमारे पास टोटल एनर्जी होती है उसका कितना परसेंट एनर्जी आगे जाता है? 10%. तो 10,000 का हमारे पास 10% कितना होगा? 1,000 kilojoules. अब लेट्स से एज अ ह्यूमन, इफ आई कंज्यूम द गोट्स, तो अगेन गोट्स की सिर्फ मेरे पास 10% एनर्जी आएगी. तो मेरे पास टोटल एनर्जी कितनी पहुंच रही है? 100 kilojoules. बट एज अ ह्यूमन, I can also consume plants, right? So what if I don't eat the goats? I just eat the carrots only. तो मेरे पास, अब देखो, आई एम नॉट ईटिंग द गोट्स, आई एम ईटिंग द कैरेट्स डायरेक्टली, राइट? तो अब मैं भी क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर. तो अब मेरे पास भी कितना एनर्जी आएगा? 10% ऑफ द एनर्जी दैट इज प्रेजेंट इन द कैरेट्स. सो इंस्टेड ऑफ 100 kilojoules, I am getting 1,000 kilojoules of energy. Are we getting it? ये वाली बात सबको समझ में? Is there anyone who does not get it? ओके. तो हम लोग क्या बता देंगे, हम सिंपल से बता देते हैं कि भाई ओनली 10% of energy is passed, rather, in every trophic level. Right? So if humans directly eat या फिर consume plants, less energy would, or rather more energy, less energy के बजाय हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं, more energy would be obtained compared to feeding on the primary consumer. ठीक है? देखो, अ, हम लोग क्या बता देंगे कि देखो, क्योंकि सिर्फ 10% एनर्जी पास ऑन हो रही है, अगर मैंने ये बता दिया कि 10% एनर्जी पास ऑन हो रही है, इसका ऑटोमेटिकली मतलब क्या हो गया? 90% नहीं हो रही. 90% इज लॉस्ट टू द एनवायरमेंट, राइट? ठीक है. सो इट इफ यू गोइंग टू डायरेक्टली ईट द प्लांट्स, मोर एनर्जी वुड बी ऑब्टेन्ड कंपेयर टू ईटिंग द प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर को 10% मिल रही है, राइट? अब उस 10% का भी 10% मुझे मिल रहा है. अगर फॉर एग्जाम्पल गोट्स प्लांट्स को खा रही होती और फिर मैं गोट्स को खा रहा होता, गोट्स के पास कंपेयर टू टोटल एनर्जी ऑफ कैरेट सिर्फ 10% में गया, मुझे इस 10% का भी 10% मिला. ठीक है? हम इसको आगे और एक्सप्लेन कर सकते हैं. दिस गोइंग टू गेट अस 2 marks, बट वी कैन आल्सो एक्सप्लेन फर्दर. ठीक है? कि भाई लेस एनर्जी वुड बी मोर एनर्जी वुड बी ऑब्टेन कंपेयर टू फीडिंग ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर, as the primary consumer may use energy to move, to grow. ठीक है? अब देखो, जो गोट्स के पास ये एनर्जी जाएगी, उसमें से 90% लूज किधर हो रही है? हीट में, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, मूवमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए. तो अगर मैं प्लांट्स को डायरेक्टली खा रहा हूं, तो ये जो सारी 90% एनर्जी जो गोट से लूज हो रही है ना,
वो मुझे डायरेक्टली मिल जाएगी, वो लॉस्ट नहीं होगी। ऑलराइट, डू वी अंडरस्टैंड दिस? एवरेज हमारे पास 10% होता है, ठीक है, वी कंसिडर दिस 10%। If I'm going to consume a primary consumer, then I'll be a secondary consumer. Yes. ठीक है? Yes, this according to a syllabus, this apparently is a fixed percentage, give or take 1-2%. Arfa, do we get this now? You already बात समझ में आई? Or do you want me to explain this once again? Arfa बेटे, do we get the question? देखो, वो ये कह रहा है, it is more efficient for humans to consume plants. हम animals नहीं खाएं, हम plants खाएं, ठीक है? अब मुझे एक बात ये बताओ, the animals that we usually eat, वो कौन से वाले एनिमल्स होते हैं? डू वी यूजुअली कंज्यूम द हर्बीवोर्स और डू वी कंज्यूम द कार्निवोर्स? प्राइमरी कंज्यूमर्स, राइट, वी यूजुअली कंज्यूम द हर्बीवोर्स, ठीक है। सो कहने का मकसद क्या है, उस सवाल का मकसद ये था, भाई इज इट गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमंस टू जस्ट डायरेक्टली ईट द प्लांट्स, और इज इट गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमंस टू ईट द प्राइमरी कंज्यूमर्स? So what they asked was, if the humans are not consuming the primary consumers but they're consuming the producers directly, what's the benefit? Make sense? ठीक है, yes we can. मतलब सम यस वी कैन राइट कि भाई इतनी एनर्जी लूज हो रही है। ऑल राइट, किसी और को तो कोई मसला नहीं इस वाले सवाल के अंदर? देखो कहने का मकसद क्या है, अगेन दैट्स व्हाट वी ट्राइंग टू डू, वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ठीक है। आंसर बड़ा आसान सा है। ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन। अब वो कह रहा है, इफ ह्यूमन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एनिमल प्रोटीन दे ईट, then less agricultural land is required. Suggest 3 environmental benefits for reducing the amount used for agriculture. देखो, अगर वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग एनिमल प्रोटीन्स कम कर दें तो एग्रीकल्चर के लिए लैंड भी कम रिक्वायर होगा, बिकॉज अगेन वी वुड नॉट नीड टू हैव स्टेबल्स फॉर हॉर्सेस, और नो हॉर्सेस, खैर द आई डोंट नो इफ काउज लिव इन स्टेबल्स, राइट? सो बेसिकली वेयर द काउज एंड द अदर ऑर्गेनिजम्स लिव, ठीक है, दैट वी ईट, गोट्स वगैरह। एग्रीकल्चर के लिए द मेजर ड्रॉबैक दैट वी हैव इज डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। अब वाई डू वी कैरी आउट डिफॉरेस्टेशन? भाई फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक जगह थी जब विच वॉज अ फॉरेस्ट, बट इट वॉज नियर टू अ लेक फ्रॉम लेट्स से वेयर माई काउस को ड्रिंक। मैंने क्या करा, उस फॉरेस्ट के अंदर से सारे जो ट्रीज थे वहाँ वो हटा दिए, जस्ट सो दैट आई कैन बिल्ड अप माई फार्म हाउस। अब उससे हमारे पास क्या हुआ? सो 3 इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स क्या होंगे? सबसे पहले देर, अब हम लोग एक ही चीज़ को पकड़ लेते हैं, ठीक है। हमने कहा देर इज गोइंग टू बी लेस डिफॉरेस्टेशन। अब इसकी वजह से क्या होगा? ड्यू टू विच व्हाट्स गोना हैपन, हमने दूसरे वाले पॉइंट के अंदर लिख दिया, देर विल बी लेस कंपटीशन फॉर रिसोर्सेस अमंग द लोकल बायोडाइवर्सिटी। देखो ये एग्जांपल हम लोगों ने लेक्चर के टाइम भी दी थी, कि देखो क्या हो रहा है हमारे पास, लेट्स से द लैंड दैट आई क्लियर्ड ऑफ फॉर लेट्स से भाई फॉर हैविंग अ डेयरी फार्म, उसके ऊपर कौन से वाले ट्रीज थे? बनाना ट्रीज थे, ठीक है। मैंने क्या करा, अब मैंने मेजॉरिटी ऑफ द बनाना ट्रीज को रिमूव कर दिया। सो फॉर एग्जांपल एवरीवेयर देयर वर बनाना ट्रीज, मैंने क्या करा, मैंने जो स्ट्रीम के पास वाला हिस्सा था ना, मैंने वहाँ उसको क्लियर ऑफ करवा दिया। मैंने कहा अच्छा भाई थोड़े बहुत जो लोकल डाइवर्सिटी है वो यहाँ रह लेगी, लेकिन ये वाला लैंड तो क्लियर हो गया ना। अब पहले क्या हो रहा था, वन बनाना ट्री फॉर एग्जाम्पल बिलोंग टू अ सिंगल मंकी। अब जो भी इसको बनाना ट्री प्रोड्यूस कर रहा है वो सब का सब ये मंकी खा रहा है। लेकिन अब क्या हुआ, बिकॉज ऑफ क्लियर्ड ऑफ मोस्ट ऑफ द बनाना ट्रीज, अब एक बनाना ट्री के ऊपर लेट्स से भाई देयर आर 20 मंकीज, कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन फॉर व्हाट? कंपटीशन फॉर फूड, कंपटीशन फॉर रिसोर्सेस। आर वी गेटिंग इट? जस्ट बिकॉज आई कैरिड आउट डिफॉरेस्टेशन, and if I would continue deforestation, can it lead to extinction? Yes it can, ठीक है। तो हम तीसरी चीज क्या बता देंगे कि लेट्स डिफो, अगर हम लोग
एनिमल प्रोटीन कम खाएंगे, लेस एग्रीकल्चर लैंड रिक्वायर होगा, उसकी वजह से क्या होगा, बेनिफिशियल इफेक्ट्स क्या होंगे एनवायरनमेंट के ऊपर, कि भाई डिफॉरेस्टेशन कम होगी, राइट। रिसोर्सेज के लिए जो वहाँ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके लिए जो रिसोर्सेज हैं उसके लिए हमारे पास कंपटीशन कम हो जाएगा, राइट। One of the major problems with cattle farming is it leads to production of methane, and methane is a greenhouse gas. तो हम ये बता देंगे लेस मीथेन। अगर हम लोग ये भूल जाएंगे भाई कौन सी वाली गैस रिलीज हो रही थी, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे लेस ग्रीन हाउस गैसेस आर released, so less global warming would occur. बात समझ में आ रही है? Does anyone have any problems with this question? सॉइल इरोजन भी लिख सकते हैं बेटा, अगेन डिफॉरेस्टेशन से कोई भी चीज रिलेटेड होगी हम लोग वो भी लिख सकते हैं। सॉइल इरोजन लीडिंग टू वो यूट्रोफिकेशन, यहाँ प्लांट्स की बात नहीं हो रही। वी कैन मेंशन फर्टिलाइजर्स। लेकिन उसको और एक्सप्लेन करके लिखना, ठीक है। नहीं, उसने सिर्फ एग्रीकल्चर का बोला है, ठीक है। हम ये बता देंगे कि भाई सिंस देयर वुड बी लेस कैटल, very good. Since there would be less cattle to produce less feces, मैंने ये हाउस में बता दिया भाई फीसेस से मीथेन निकलती है, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होंगी। तो हम लोग ये बता सकते हो कि भाई दोस लेट्स से द फीसेस फ्रॉम द cows can act as fertilizer which may run off into water bodies and causing eutrophication, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। हाँ, मेरा हेल्प बिल्कुल ठीक, ठीक है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करें, वो चीज़ें कम होंगी, वो चीज़ें कम होंगी, ठीक है। देखो आई वुड सजेस्ट कि भाई just don't write the points, explain wherever you can, ठीक है सुबैना। again depending on the time, ठीक है, less or फिर no global warming would occur. Okay, now coming to question number 3. All right. Staphylococcus aureus is a pathogen which infects human, can be destroyed by antibodies and antibiotics. Okay, let's go over that very quickly. The cells of the bacterium is spherical and about 1 micrometer in diameter. Figure 3.1 shows the diameter of the bacterial cell. अच्छा जी, वो कह रहा है ए बी क्या है। सबसे पहले अगर हम लोग बी को देखें तो बी हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्लास्मिड्स हो जाएंगे। ए हमारे पास क्या हो जाएंगे, राइबोसोम्स हो जाएंगे, ठीक है। सो ए हमारे पास क्या हो गया, ए इज अ राइबोसोम, बैक्टीरिया आल्सो हैव अ राइबोसोम। बी हमारे पास क्या हो जाएगा, इट्स गोइंग टू बी द बैक्टीरियल प्लाज्मिड। वो कह रहे A can also be found in animal and plant cells. State two other components of the bacterial cell that can be found in animal and plant cells. So we know that the bacteria has a cell membrane. We know that the bacteria has the cytoplasm. ये सारे organisms के अंदर होता है. So we'll simply say cytoplasm and we'll say कि भाई cell membrane. अच्छा, अब वो कह रहा है antibodies can destroy bacterial cells without destroying human cells. भाई why is it possible? Antibodies, what we know, works on foreign antigens, right? What are antigens? They're cell surface proteins, those proteins that are present on the surface of organisms. अब फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर मेरे जो सेल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे मेरा स्किन सेल्स है, मेरे स्किन सेल के ऊपर हारेस एंटीजेंस होंगी, ये मेरी सेल्फ एंटीजेंस है, मेरे इम्यून सिस्टम इसको रिकग्नाइज करता है, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल किसी और के स्किन सेल मेरे बॉडी में आ जाए, फॉर ब्लड में आ जाए, फॉर एग्जांपल मिप्साम के आ जाए, उसके पास मिप्साम एंटीजेंस है, मिप्साम एंटीजेंस मेरी बॉडी में फॉरेन होंगी, ठीक है। अच्छा जी, सो हम लोग क्या बता देंगे कि एंटीबॉडीज ओनली एक्ट ऑन कौन सी वाली एंटीजेंस, फॉरेन एंटीजेंस, ठीक है। और नॉन सेल्फ भी लिखते हैं, ठीक है, ऑन फॉरेन एंटीजेंस बट नॉट the self antigens, hence they recognize antigens
on bacterial cells as foreign, destroying them. ठीक है जी। अच्छा, अब वो कह रहा है कि भाई देर आर मैनी डिफरेंट sorry, there are many different types of strains of Staphylococcus aureus cells, and some can resist antibiotics better than others. A disc diffusion test is carried out to investigate the resistance of four strains of Staphylococcus aureus (KLMN) to different antibiotics. The four strains are first grown to cover the surface of separate agar plates. The disc containing six different antibiotics, one से लेकर six, are placed on the agar plates. Figure 1.2 shows the result of investigation over several days. Any clear zones indicate where S. aureus has died. भाई हम लोगों ने यहाँ अलग अलग एंटीबायोटिक्स ली और हमारे पास स्ट्रेन के, स्ट्रेन एल, स्ट्रेन एन और स्ट्रेन एम को डाला। जिस जगह के ऊपर भी क्लियर जोन आ जाएगा उसका मतलब क्या हुआ? दैट बैक्टीरिया इज डाइंग। अब एंटीबायोटिक स्ट्रेन के से हमारे पास व्हेन आई एडेड antibiotics 1 2 3 4 5 6, this bacteria of strain K were not dying because of antibiotics 1 and 3. They were resistant to it. स्ट्रेन एल के बैक्टीरिया की सब सारी एंटीबायोटिक्स उनके ऊपर एक्ट कर रही थी। स्ट्रेन एम के बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक 1 वो काम नहीं कर रही थी, तो स्ट्रेन एम एंटीबायोटिक 1 से रेजिस्टेंट हो गई, और स्ट्रेन एन जो है वो एंटीबायोटिक 1 और 3 से रेजिस्टेंट है, और 2 भी ज़्यादा एक्ट नहीं कर रहा, 2 से पार्शली रेजिस्टेंट है। अब वो कह रहा है सजेस्ट वाई दे कॉल इट अ डिस्क डिफ्यूजन टेस्ट। हम लोग हर वेल के अंदर जब एंटीबायोटिक डाल रहे हैं, व्हाट्स डिफ्यूजिंग थ्रू दिस एगर प्लेट? द एंटीबायोटिक इज। Since the antibiotic is diffusing across this agar plate, we call this as what? Very good. We call this as कौन सा? ये वाला टेस्ट नहीं, ये टेस्ट याद नहीं रखना, उसने ऊपर बताया हुआ है, उसने पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है, तो हम लोग याद क्यों करेंगे? ठीक है, ये समझा, वी कुड हैव रिटन डीएनए एज वेल। ठीक है। अच्छा, नाउ तो हम बता देंगे सिंस the antibiotic is diffusing through the agar. All right, अच्छा, अब वो कह रहे हैं भाई डिस्क्राइब व्हाट द रिजल्ट्स शो अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ एंटीबायोटिक्स 1 and 4, सॉरी 1 and 5। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी। हम अगर 1 के बारे में बात करें, हम बता देंगे स्ट्रेन के, स्ट्रेन एम एंड स्ट्रेन एन इज रेजिस्टेंट ना, तो हम बता देंगे कि एंटीबायोटिक 1 इज ओनली इफेक्टिव एट किलिंग व्हाट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, स्ट्रेन कौन सी? स्ट्रेन एल। हम आगे लिख सकते हैं वाइल द रेस्ट आर रेजिस्टेंट टू इट। एंटीबायोटिक 5 क्या हम बता सकते हैं? नो स्ट्रेन इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक 5। ठीक है, सिंपल से हमें ये बात बतानी है ना। ये हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि भाई स्ट्रेन 5 इज इफेक्टिव अगेंस्ट एवरी लेट्स से स्ट्रेन। अच्छा, अब वो कह रहा है ओवर टाइम percentage of each strain of Streptococcus aureus population will change. Suggest which strain K, L, M or N is likely to become the largest percentage of the population. देखो बेटे लोग, अगर हम लोग यहाँ देखें, what happens is those bacteria which are resistant against many antibiotics, obviously they're going to survive more. तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा ये सबसे कम रेजिस्टेंट कौन है? स्ट्रेन एल। उसके बाद कौन है? स्ट्रेन एम, क्योंकि इट्स ओनली वो रेजिस्टेंट अगेंस्ट वन वन एंटीबायोटिक। ठीक है, स्ट्रेन के इज रेजिस्टेंट अगेंस्ट एंटीबायोटिक 1 and 3। लेकिन अगर हम लोग स्ट्रेन एन को देखें, besides being resistant to strain 1 and 3 of the antibiotics,
स्ट्रेन टू भी उसके ऊपर इतना अच्छे से काम नहीं, वो एंटीबायोटिक नंबर टू भी इतना अच्छे से काम नहीं कर रही, तो इट्स मोस्ट लाइकली एन। कहने का मकसद क्या हुआ कि अगेन दैट एंड दैट स्ट्रेन दैट इज गोइंग टू बी इफेक्टिव और दैट इज गोइंग टू बी रेजिस्टेंट टू मोस्ट एंटीबायोटिक्स, राइट, will obviously later on in the future will become the largest percentage, बाकी सब तो मर जाएंगे ना। The antibiotics are acting as a selection pressure against the bacteria। तो कौन सा वाला बैक्टीरिया के हाईएस्ट चांसेस सर्वाइव करने के, जो कम एंटीबायोटिक से अफेक्ट हो रहा है, स्ट्रेन एन। अच्छा जी, अगले सवाल पर देखो। अब वो कह रहा है भाई एक्सप्लेन वाई, वही वाली चीज उसने पूछ ली जो भी हम लोगों ने पूरी एक्सप्लेन करी। हम बता देंगे कि एंटीबायोटिक्स act as what, सिलेक्शन प्रेशर्स। कोई भी चीज जो एक ऑर्गेनिज्म को किल करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिलेक्शन प्रेशर कहते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स एक्ट एज सिलेक्शन प्रेशर्स ऑन द बैक्टीरिया, those bacteria such as N that are resistant to most antibiotics are likely to survive, वही ज्यादा सर्वाइव करेंगे, and pass on the what, the advantageous, let's say gene, या फिर ये जो advantageous mutation है of what, antibiotic resistance to their what, offsprings। हम बता देंगे कि भाई since they will have a higher chance to produce offsprings compared to other strains, they will have the largest population, ठीक है। So that's the thing. Does anyone have any problems with this particular question? Bacteria does not have alleles, मेरे बच्चे। Sure, Aisha, sure, Aisha. I will do that, ठीक है। So we're done with this. Okay, so we're going to stop here today.